Chapter 11, Mensuration. Mensuration is a chapter which is heavily loaded with formulas. So there are a lot of formulas which you will have to remember for each particular shape. The chapter is divided into two parts: 2D geometry and 3D geometry. What is 2D geometry or two dimensional, and what is three dimensional? Two dimensional is slightly easy, three dimensional is slightly difficult. And three dimensional will come in 9th and 10th as well. So whatever formulas you are learning right now is going to be useful in coming 2 years also. 2D ज्योमेट्री का पार्ट कौन है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, rhombus, equilateral triangle, not an equilateral triangle, right angle triangle, circle, semicircle, trapezium, etc. Square, rectangle, parallelogram, rhombus, equilateral triangle, normal triangle, right angle triangle, circle, hemisphere, semicircle, trapezium, hexagon, pentagon, etc. All the shapes which you know are a part of 2D, which we will do in this chapter. और 3 dimension मतलब visualizing solid shapes में जो solids थे वो, for example a cube. क्यूब कैसे ड्रॉ करते हैं देखो, दो स्क्वायर बनाने के और उनको साइडवेज ज्वाइन कर देने का. दिस इज अ क्यूब. क्यूबॉइड में दो रेक्टेंगल बनाने के और उनको साइडवेज ज्वाइन करने का, तो क्यूबॉइड. सिलेंडर, कोन, स्फीयर मतलब एक बॉल, हेमिस्फीयर, एक्सेट्रा. क्यूब, क्यूबॉइड, cylinder, cone, sphere, hemisphere. So this is the world of 3D which we'll do in second half of the chapter. Right now we are focusing on two-dimensional objects, and the list of 2D objects is here: square, rectangle, right angle triangle, normal triangle, equilateral triangle, trapezium, parallelogram, rhombus, circle, semicircle, and a normal quadrilateral. Look at this PDF which I have specially prepared, and I am going to send it to you on WhatsApp. This contains the formulas of perimeter and area. We'll look at one by one all the formulas, but first understand the difference between perimeter and area for all the objects. Perimeter क्या है? Perimeter is the total of all the sides. Perimeter is equal to total of the length of all the sides. कोई भी शेप हो उसकी साइड्स होती है और वो साइड्स की लंबाई का टोटल करो तो पेरीमीटर बनता. तो स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4, और चारों साइड सेम होती है स्क्वायर में, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, और चारों साइड सेम है, देयरफॉर 4 into साइड इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर है तो उसकी चारों साइड सेम नहीं है. साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4. पेरीमीटर मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, 2 कॉमन, लेंथ प्लस ब्रेथ
is the formula of perimeter of rectangle. Perimeter of parallelogram, length plus breadth plus length plus breadth तो सेम आएगा 2l plus b. Perimeter of rhombus, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, रॉम्बस में चारों साइड सेम होती है तो इट विल बी 4s. तो ऐसे करके ये एक लिस्ट बनाया है विच यू विल हैव टू बाय हार्ट, दैट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 into लेंथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तीनों साइड सेम होती है इसलिए. राइट एंगल ट्राइंगल साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस हाइपो. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. You have to write these tables as homework 5 times, क्योंकि ये बाय हार्ट करना है. 5 बार लिखोगे तो ही याद रहेगा. तो पहले स्क्वायर, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फिगर्स. स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, एल 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 एल, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल. पेरीमीटर का फॉर्मूला 4l और एरिया का फॉर्मूला. Now, what is area? Area is this portion. कितना एरिया, कितनी जगह रोक रहा है ये स्क्वायर मेरी स्क्रीन के ऊपर. फॉर्मूला इज एल स्क्वायर. सिमिलरली फॉर अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इज लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 ब्रैकेट एल प्लस बी. और एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ एल बी. एल बी मतलब एल इंटू बी. इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होती है. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर मीन्स साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3. पेरीमीटर मतलब टोटल ऑफ ऑल द साइड्स. बट साइड 1 साइड 2 साइड 3 सेम है, तो एल एल एल, देयरफॉर 3l और 3 into side is the formula of perimeter of an equilateral triangle. And the formula of the area of equilateral triangle, मतलब ये portion, this area is √3 upon 4 multiplied by side into side. And side into side मतलब side square होता है. तो अगर मैं कहूँ that I have an equilateral triangle of length 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो पेरीमीटर कितना 3 into 5 15 सेंटीमीटर. और एरिया √3 upon 4 इंटू साइड मतलब 25 √3 upon 4 विल बी द एरिया. √3 को ऐसे ही रहने देना. राइट एंगल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने देखा. अब राइट एंगल ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. एवरी राइट एंगल ट्राइंगल हैज अ 90 डिग्री. कैसा भी शेप हो राइट एंगल ट्राइंगल का, एक 90 डिग्री जरूर होगा. जहां पे भी 90 है परपेंडिकुलर, उसके सामने की साइड हाइपोटेनियस होता है. 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने हाइपो, 90 के सामने हाइपो, कंपल्सरी. और जो बाकी की दो साइड्स है वी कॉल इट S1 S2 या साइड 1 साइड 2. कोई भी साइड 1 बन सकता है, कोई भी साइड 2 बन सकता है.
सो हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. पेरीमीटर कुछ खास होता ही नहीं है. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. मतलब साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस हाइपो. देयरफॉर फॉर्मूला इज साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस हाइपो. लॉजिकल है. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल? हाफ मल्टीप्लाइड बाय साइड 1 इंटू साइड 2. इसमें हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है. हाफ मल्टीप्लाइड बाय साइड 1 इंटू साइड 2. दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2. मतलब 90 डिग्री बनाने वाली दो साइड्स को मल्टीप्लाई करो विथ हाफ, यू गेट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. नॉर्मल ट्राइंगल. नाउ नॉर्मल ट्राइंगल का मतलब यह है कि दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट इज नॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल में तीनों साइड सेम होती है, बट यहां पे तुम देख सकते हो एक साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, और सबसे बड़ी बेस. व्हेन द ट्राइंगल इज नॉर्मल ट्राइंगल, मतलब ना 90 डिग्री है ना इक्विलैटरल है. To find the perimeter, it's simply total of all the sides. Side 1 plus side 2 plus side 3. तीनों साइड दी होगी, उसका टोटल करो तो पेरीमीटर मिल जाएगा. It's nothing special in the formula. But एरिया के लिए तुम्हें ऑल्टीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा. Now let us discuss what is an altitude. Half बेस ऑल्टीट्यूड. इस ट्राइंगल में नीचे वाली साइड को तुम बेस बनाओ. दिस इज द बेस. सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड. व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? बेस BC है तो बचे हुए पॉइंट से एक 90 डिग्री लाइन नीचे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर. दिस इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. ऑल्टीट्यूड को ऑल्टीट्यूड को हाइट भी बुला सकते. सो हाफ इंटू BC इंटू AM is the formula of finding area of a normal triangle. Half base altitude. फिर से एक बार, any normal triangle you can choose any base. I am choosing this as my base. तो ट्राइंगल का नाम अगर x, y, z है, the formula of area of triangle is half base altitude. मतलब हाफ बेस XZ लिया है, तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, कहाँ से ड्रॉ होगा? कंपल्सरी Y से XY की तरफ एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन is the altitude YM. So half into XZ into YM will give you the area of this particular triangle, which is this entire portion. Perimeter and area of trapezium. But before I tell you, you should understand कि trapezium में special क्या होता है. ट्रपीजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड अदर 2 आर नॉट पैरेलल. कंपल्सरी द टॉप एंड द बॉटम विल बी पैरेलल. द लेफ्ट एंड द राइट साइड विल नॉट बी पैरेलल. नाम देते हैं ABCD. पेरीमीटर का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है.
it is simply the total of all four sides. Side 1 plus 2 plus 3 plus 4, जितना भी सेंटीमीटर है तुमको पेरीमीटर मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, if I say AB is 7 centimeter, BC 5 centimeter, DC 2 centimeter and AD 3 centimeter, perimeter is 7 plus 5 plus 2 plus 3, 15 centimeter आंसर. तो पेरीमीटर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट एरिया थोड़ा सा ट्रिकी है. एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. कौन पैरेलल है? DC एंड AB आर पैरेलल टू ईच अदर. तो यहां पे आएगा DC प्लस AB, टोटल ऑफ द पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड. अब ये ऑल्टीट्यूड क्या है? पैरेलल साइड के एक पॉइंट से नीचे 90 डिग्री ड्रॉ कर. दिस इज द ऑल्टीट्यूड. C से करोगे तो भी सेम मिलेगा, 90 डिग्री लाइन DM. और ये भी दिया हुआ होना चाहिए. इफ से 6 सेंटीमीटर इज द ऑल्टीट्यूड, एरिया विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 और 7 पैरेलल है, मल्टीप्लाइड बाय द ऑल्टीट्यूड. हाफ इंटू 9 इंटू 6, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, एरिया ऑफ ट्रपीजियम. So half into sum of parallel sides into altitude, और altitude दो पैरेलल साइड का डिस्टेंस है जो 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करके होता है. पैरेललोग्राम perimeter S is same as rectangle, 2L plus B. मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड एरिया इज बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. तो कैसे देखो, कोई भी पैरेललोग्राम में नीचे वाली लाइन को तुम बेस बना सकते हो. दिस इज द बेस. और अगर ये बेस है तो ऑल्टीट्यूड सामने की साइड का कोई भी एक वर्टेक्स से 90 डिग्री लाइन क्रिएट होगी. दिस इज द ऑल्टीट्यूड. बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, दैट्स ऑल. सो इफ यू कंपेयर a rectangle and a parallelogram, rectangle का पेरीमीटर 2L plus B, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी 2L plus B, but area of rectangle is length into breadth, length into breadth, but area of parallelogram is base into altitude. Base is this one and altitude ये 90 डिग्री लाइन किसी भी एक पॉइंट से. वैसे देखा जाए तो ये रेक्टेंगल का ऑल्टीट्यूड ही है 90 डिग्री, और ये ब्लू लाइन बेस है. सो L into B is base into altitude. Here also L into B is base into altitude. Perimeter and area of rhombus. Rhombus एक tilted square होता है, चारों साइड सेम होती है बट टिल्ट हुआ होता है. So perimeter formula is length plus length plus length plus length, और चारों लेंथ सेम है, देयरफॉर 4L.
and the formula of area of rhombus is half into d1 into d2. क्या है ये d1 d2? d1 और d2 डायगनल है. सो इन parallelogram ABCD, AC and BD are diagonals, और वो डायगनल को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एरिया ऑफ रम्बस. हाफ d1 d2, हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. इसमें बेस और ऑल्टीट्यूड नहीं है. पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल. सर्कल के पेरीमीटर का एक और नाम है. पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड सरकमफरेंस. सरकमफ्रेंस मतलब ये गोल की लंबाई. यहां से यहां तक गोल घूम के मेजर करो तो सरकमफ्रेंस मिलती है. एंड दैट फॉर्मूला इज 2 पाई आर. 2 पाई आर, और आर मतलब रेडियस. पाई की दो वैल्यू होती है. यू कैन यूज 22/7 और यू कैन यूज 3.14. 3.14 कहाँ से आती है? देखो कैलकुलेटर में 22 डिवाइड बाई 7 करो तो 3.14 आ जाता. So either you can use 22/7 or you will use 3.14 as the value of pi, and 2 pi r is the formula of circumference and pi r square is the formula of circle. तो सर्कल का ये पूरा एरिया फाइंड करना है तो पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर. तो रेडियस होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू हैव द रेडियस you can easily find perimeter and area of a circle. Semicircle. Semicircle में, see this is a circle. This is the diameter, and diameter is made up of 2 radiuses. तो जब सेमी सर्कल बनता है तो उसमें ये लाइन और ये कर्व है. दिस लाइन इज द डायमीटर मेड अप ऑफ आर आर 2r प्लस ये जो आधा चक्र है उसकी लंबाई पाई आर होती है. पाई आर. What is the formula of perimeter of circle? 2 pi r. क्यों आया 2 pi r? देखो सर्कल के अंदर आधा सर्कल पाई आर है तो दूसरा आधा भी पाई आर. तो पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर. देयरफॉर फुल सर्कल का लंबाई 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का पाई आर प्लस आर मतलब 2r प्लस पाई आर. तुम्हें ये कुछ भी ना समझ में आए तो चलेगा, बट फॉर्मूला बाय हार्ट करना जरूरी है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल? द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल. पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया है, उसका आधा. So it's very simple, half pi r square या pi r square by 2. तो full circle area is pi r square, semi circle area is pi r square by 2. Hexagon. Perimeter of hexagon is 6 into side.
because hexagon is made up of 6 equal sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The perimeter is side plus side plus side plus side plus side plus side. And area, it's interesting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. जब एक हेक्सागन बनता है उसके डायगनल्स बनाओ 1, 2 and 3. You will find there are 6 equilateral triangles created. तो हेक्सागन का एरिया इज 6 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर, जो हमने पहले ही सीख लिया. दिस इज ऑप्शन 1. But there is another option to find the area of hexagon, and that another option looks something like this. वापस मैं एक hexagon ड्रॉ कर रहा हूं. When you draw this diagonal, तो ये साइड और डायगनल पैरेलल बन जाते. इसका मतलब ये एक ट्रपीजियम बन गया. दिस इज अ ट्रपीजियम. और ऐसा सेम ट्रपीजियम नीचे भी है, बिकॉज नीचे की साइड और डायगनल भी पैरेलल है. So another strategy of finding the area of hexagon is 2 multiplied by area of trapezium. तो 6 equilateral triangles लो या 2 trapezium, और trapezium का एरिया का फॉर्मूला इज half into sum of parallel sides into altitude. Half into sum of parallel into altitude, which means तुमको altitude की जरूरत पड़ेगी, which is this. If you have the altitude, you have this two sides, you can find the area of trapezium multiplied by 2, then you can find the area of entire hexagon. And last is area of quadrilateral. Square, rectangle, rhombus, parallelogram सब quadrilaterals है. But when I say quadrilateral, it means a figure with no specific shape. कोई स्पेशल शेप नहीं है. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल. A, B, C, D. This is side 1, side 2, side 3, side 4. Perimeter is sum of all the sides. S1 plus 2 plus 3 plus 4. Simple formula. But एरिया का फॉर्मूला इज हाफ, which is just a number. D मतलब डायगनल. तो डायगनल को मैं रेड कलर से कर रहा हूं ये. एंड H1 प्लस H2. ये डायगनल AC है, तो D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी, which will be considered as H1, और B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. This will be considered as H2. So area is half into diagonal AC into
height 1 plus height 2. So to find the area of normal quadrilateral, you will require the length of one diagonal and two heights. और इसमें भी दो ऑप्शन है. See, I am making same quadrilateral AB, BC, CD, DA. But instead of diagonal AC, I am drawing diagonal BD. और अगर BD diagonal है तो H1 A से बनेगा और H2 C से. You will get exact same answer no matter which diagonal and which height you use. So this table you have to by heart and write down the entire table 5 times so that all area perimeter formulas are by heart. Now look at this. This is a parallelogram. और ये parallelogram में base is given as 14. और ये जो 7 है वो स्टैंडिंग किया है, ऐसे स्लैंटिंग 7 नहीं है, स्टैंडिंग 7 है. मीन्स द हाइट इज 7, परपेंडिकुलर हाइट. Therefore, we can find the area of this parallelogram. Parallelogram मतलब एक स्क्वायर के ऊपर m लिखने. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. फॉर्मूला मुझे बाय हार्ट है. बेस 14, ऑल्टीट्यूड 7, आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. Can I try to find out the perimeter of this parallelogram? No. क्यों? क्योंकि पेरीमीटर के लिए लेंथ 14 है but breadth is missing, and without the breadth you cannot find out the perimeter. सेमीसर्कल का एरिया फाइंड करते हैं. नाउ दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो पूरा 14 है तो उसका हाफ 7 और ये स्टैंडिंग हाइट 7 है, मतलब ये भी 7. इन शॉर्ट, फ्रॉम द फिगर वी फाइंड आउट दैट रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज 7. तो पेरीमीटर फाइंड करना है तो फॉर्मूला विच यू आर सपोज टू बाय हार्ट इज पाई आर प्लस 2r. पाई 22/7 इंटू r 7 प्लस 2 इंटू r 7. The perimeter of this semicircle is 36 centimeter. मतलब outer boundary is 36 centimeter and area is half pi r square. Half pi r square. Cancel as much as you can and find the answer. Very simple. 2 और 22 cut, 11 बचा. 7 cut, 11 sevens are 77 centimeter square is the area of the semicircle. So in the first part of the chapter, your maximum practice will be figure is given, you have to find the area and perimeter. Perimeter of rectangle is 2l plus b. 2 लेंथ 14 है, ब्रेथ 7 है, 42 सेंटीमीटर इज द आंसर.
एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ 14, breadth 7, 98 centimeters square. What kind of triangle is this? This is a normal triangle. तीन तरह के ट्राइंगल के फॉर्मूलाज होते हैं. इक्विलैटरल मीन्स ऑल साइड्स आर सेम, बट यहाँ दिख रहा है ऑल साइड्स आर नॉट सेम. 14, 11, 9 अलग अलग है. सेकेंड ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे 90 कहीं बताया नहीं है, सो देर इज नो 90. देयरफॉर दिस इज अ नॉर्मल ट्राइंगल जिसका ऑल्टीट्यूड पता होना चाहिए. नॉर्मल ट्राइंगल में one is the base and other is the altitude. Here the base is 14 and the altitude is 7. Therefore, area of this normal triangle, the formula is half base altitude. Half 14, 7, 49 centimeters square answer. This is the area of this triangle. What about perimeter? Perimeter is nothing but sum of all the sides. First side plus second side plus third side. 34 centimeter is the perimeter. 14 plus 11 plus 9. Square कैसे पता? 7/7 का स्क्वायर ही होता है. स्क्वायर का पेरीमीटर 4L, 4 इंटू 7, 28 सेंटीमीटर. और स्क्वायर का एरिया इज L स्क्वायर या साइड स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. That brings us to exercise 11.1. But this is one of the toughest chapters. Therefore, we are not going to start the exercise. We are going to practice more trying to find out areas and perimeters of different shapes before we start the exercise. You can see topic A here. We are going to do topic wise. Topic A is on the square. 5 questions on square. Topic B is 5 questions on rectangle. And I am going to solve those 5 questions. You are going to get a homework of similar sums but different numbers. तो ध्यान से देखना कैसे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. तुम्हें in same style have to solve the homework questions, which is 5 per shape. Let's look at the first question. Find area and perimeter of square of side 11. पहले एक छोटा सा फिगर जो बहुत जरूरी है, और सर्कल नहीं, स्क्वायर. साइड 11 सेंटीमीटर. रोमन नंबर 1, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4L, 4 इंटू 11, 44 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एरिया. एरिया का फॉर्मूला L स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. I haven't told you one thing which you have to be careful. Whenever you find perimeter, the unit of perimeter is going to be centimeter. कोई भी शेप हो, अगर पेरीमीटर पूछा है तो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर और मीटर. क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर यूज करो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यूज करो.
एंड एरिया का यूनिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी cm स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. Remember this, otherwise half mark will be cut in final exam for not writing the unit. तो पहला सम हो गया वेरी इजी, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड 11. सेकेंड सम, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 1.2. अगेन ड्रॉ अ स्क्वायर जिसकी साइड 1.2 सेंटीमीटर है. नंबर 1, perimeter is equal to 4L formula is equal to 4 into 1.2 is equal to 4.8 meter, sum over. Second, area is equal to L square is equal to 1.2 square is equal to 1.44 meter square, sum over. फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं. बट थर्ड सम थोड़ा सा ट्रिकी है. थर्ड सम सेज फाइंड द एरिया. एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ अ स्क्वायर. तो एक स्क्वायर ड्रॉ करके रख दो ताकि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है पता चले. If the perimeter is 84, यहां पे स्क्वायर की साइड दी ही नहीं है. स्क्वायर की साइड ही नहीं है तो तुम एरिया नहीं फाइंड कर सकते. स्क्वायर की साइड को x अज्यूम करो. लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x, और यहां पे लिखा है पेरीमीटर इज 84. तुम भी लिखो बट इक्वेशन फॉर्म में पेरीमीटर इज इक्वल टू 84. पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड 4x इज 84. 4 डिवाइड हो जाएगा, लो x मिल गया 21. सो फ्रॉम द पेरीमीटर you found out the side, and now from the side you will find out the area. area is equal to side square मतलब 21 square मतलब 441 cm square. That's your answer. तो एक बात समझो, फर्स्ट और सेकेंड सम में साइड was given from which you found out perimeter also, area also. But in third sum, perimeter was given from which you found out the side, and from the side you found out the area. तो 84 पेरीमीटर वाले स्क्वायर की साइड 21 जिसका एरिया 441. कहानी में ट्विस्ट था, और फोर्थ सम में भी ट्विस्ट होने वाला है. फोर्थ सम में एरिया दिया होगा जिसमें से हम साइड ढूंढेंगे, और वो साइड में से हम पेरीमीटर ढूंढेंगे. क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर. perimeter is equal to question mark of a square. स्क्वायर ड्रॉ करके रखो अपने रेफरेंस के लिए. इफ द एरिया इज 441, एरिया इज गिवन 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. यहां पे क्वेश्चन में करेक्शन है. लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x, क्योंकि है ही नहीं तो x ले लेने का. तो एरिया इज इक्वल टू 441, बट एरिया का फॉर्मूला इज साइड स्क्वायर.
is 441. If x square is 441, x is 21. बेसिकली स्क्वायर रूट निकाला, और ये x21 को मैं पेरीमीटर के फॉर्मूला में डालूंगा. पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू द साइड, 4 इंटू 21, 84. तो एरिया में से साइड और साइड में से पेरीमीटर. द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ इज 4. एक स्क्वायर जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ऐसे स्क्वायर के एरिया और पेरीमीटर का रेशियो ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर मतलब एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, दिस इज कॉल्ड रेशियो. तो पहले एरिया फाइंड करो. साइड स्क्वायर 4 स्क्वायर 16. पेरीमीटर फाइंड करो. 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 4, 16. द रेशियो ऑफ एरिया अपॉन पेरीमीटर इज 1/1 या 1:1. तो रेशियो कोई बड़ी बात नहीं है. एरिया पेरीमीटर फाइंड करो, उसको डिवाइड करो सम ओवर. मैं एक बार थोड़ा सा अलग नंबर लेता हूं, 4 की जगह 3 लेता हूं, तो देखना कैसे रेशियो बदल जाएगा. एक स्क्वायर जिसका लेंथ है 3, तो एरिया इज साइड स्क्वायर मतलब 9 एंड पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड मतलब 12. देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया अपॉन पेरीमीटर इज 9/12. फाइनल आंसर 3:4 या 3/4. तो 1 आना जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है. So we did 5 sums of square and I am showing you your homework. This is the mensuration homework and these are the 5 sums of square. जो डिट्टो सेम है, सिर्फ नंबर्स अलग. Questions on rectangle. Number 1. Find the area and perimeter of rectangle of length 5 and breadth 9. एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो. लेंथ हमेशा नीचे होती है, जो दी है वो 5. ब्रेथ यहाँ पे होती है 9. इट्स नॉट नेसेसरी कि लेंथ बड़ी होनी चाहिए, इट इज ओके. इट्स गिवन लेंथ 5, ब्रेथ 9. फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर. Area of rectangle is length into breadth. 5 into 9, 45 centimeters square. And perimeter of rectangle is 2L plus B. Means 2 into 5 plus 9. Means 2 into 14, 28 centimeter. Sum over. Second sum. Find area and perimeter of rectangle of length 5.2, width 3.2. सेम सम है, सिर्फ नंबर थोड़े से डिफिकल्ट. 5.2 एंड 3.2. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. 5.2 इंटू 3.2. सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू सेव टाइम. 16.64 centimeter square is the area. And perimeter का फॉर्मूला 2L plus B. 2 5.2 plus 3.2, 2 8.4, 16.8 centimeter is the perimeter. Exact same sum. थर्ड सम से ट्विस्ट शुरू होता है. थर्ड सम सेज फाइंड पेरीमीटर. तो लिखने का हमेशा पेरीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो तुम्हें पता रहे क्या फाइंड करना है.
फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके रख दो. फाइंड पेरीमीटर इफ द लेंथ एंड एरिया is 6 and 48. Length and area is 6 and 48 का मतलब length is 6, area is 48. Length 6, breadth पता नहीं, और जब तक breadth नहीं मिलेगा perimeter फाइंड नहीं होगा. तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया इज इक्वल टू 48, बट एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 48, बट लेंथ इज 6, सो 6 इंटू ब्रेथ इज 48. 6 डिवाइड हो जाएगा, ब्रेथ मिल गया 8, और लेंथ दिया हुआ था, ब्रेथ हमने फाइंड किया, वो दोनों पेरीमीटर के फॉर्मूला में डालो तो you will get the perimeter. Perimeter is 2L plus B. L was given 6, B we found out 8. Perimeter is 28 centimeter. तो एरिया दिया था, इस बार कुछ और दिया होगा. क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया इफ, यहां पे थोड़ा इफ आएगा. फाइंड एरिया, तो पहले कर दो एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इफ द ब्रेथ एंड पेरीमीटर इज 8 and 100, मतलब ब्रेथ इज इक्वल टू 8, पेरीमीटर इज इक्वल टू 100. हमें ढूंढना है एरिया, एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ तो है ही नहीं. तो जब तक लेंथ नहीं मिलेगी एरिया नहीं मिलेगा, और लेंथ मिलेगी पेरीमीटर में से. पेरीमीटर इज 2 ब्रैकेट L प्लस B इक्वल टू 100. 2 गेट्स डिवाइडेड सामने, तो L प्लस B रह गया, 2 सामने डिवाइड हो गया, 100 अपॉन 2 50. बट ब्रेथ इज 8, तो ब्रेथ की जगह पे 8 रख दो, और 8 सामने माइनस हो गया, लेंथ मिल गया 42. Therefore now length and breadth both can be put in the formula of area. Area is equal to length into breadth. 42 into 8, 336 centimeter square is the area. And fifth question is about ratio. Ratio मतलब simple division. Find the ratio of perimeter and area, मतलब perimeter upon area find करना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. किसका? रेक्टेंगल का. तो लेंथ और ब्रेथ कहाँ है? लेंथ एंड ब्रेथ आर 3 and 9. तो पहले पेरीमीटर फाइंड करो. 2L प्लस B, 2 3 प्लस 9 24 सेंटीमीटर. और फिर एरिया फाइंड करो. लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 9 27 27. 24 और 27 दोनों 3 से कट होते हैं. 3 8 and 3 9 जा. द रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया इज 8:9. तो पांचों स्क्वायर और पांचों रेक्टेंगल के सम्स एक दूसरे के साथ बहुत 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 सिमिलर है. क्वेश्चंस ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना कंपलसरी है. सम नंबर 1 का राइट एंगल ट्राइंगल रेडी. हाईलाइट द 90 डिग्री. फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. एंगल B 90. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम किसी को भी B नहीं ले सकते.
90 डिग्री बी है, ए और सी कहीं पे भी हो सकता है, बट बी इज 90, सो बी हैज टू बी हियर. ए बी 4, बी सी 3. So this much information is given. अबे ये सब कहाँ से आ गया? Right angle triangle ABC, B 90 degree, AB 4, BC 3. We have to find out area and perimeter. Recall the formula of perimeter. It is side 1 plus side 2 plus hypo. Hypo तो दिया ही नहीं है, मतलब perimeter find नहीं कर सकते. And area formula is half into side 1 into side 2. ये ज़रूर find कर सकते हैं because hypotenuse is not required. एरिया खत्म, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट पेरीमीटर अटक गया. वी विल हैव टू डू पाइथागोरस थियरम विच वी हैव लर्नड इन अर्लियर चैप्टर. पाइथा क्या कहता है? साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर. बाय हार्ट दिस एंड यूज दिस टू फाइंड आउट हाइपो. साइड 1 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर. हाइपो मिसिंग, कीप इट एच. 16 प्लस 9 इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर. 16 प्लस 9 25. अगर हाइपो स्क्वायर 25 है तो हाइपो 5 है, और अगर हाइपो 5 है, पेरीमीटर इज 3 प्लस 4 प्लस 5. सम ओवर. तो ये सिंपल सम के 3 पार्ट्स थे. एरिया डायरेक्ट मिल गया, पेरीमीटर के लिए हाइपो चाहिए, देयरफॉर वी डिड पाइथागोरस थ्योरम. सम नंबर 2. Drawing the right angle triangle is very important. Highlighting 90 is extremely important. Find area and perimeter of triangle XYZ. Angle X 90, मतलब ऊपर Y और नीचे Z हो सकता है. XY 5, XY 5, YZ 13. Okay, this is our triangle. क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं? नहीं. क्यों? बिकॉज साइड 1 अगर 5 है तो साइड 2 मिसिंग है, सो वी कैन नॉट फाइंड द एरिया टिल वी फाइंड साइड 2. कैन वी फाइंड पेरीमीटर? पेरीमीटर इज साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस हाइपो. 5 साइड 2 नहीं है, हाइपो भले 13 है, यहां पे भी अटक गए, मतलब सबसे पहले पाइथा करना पड़ेगा. एंड इट इज ओके इफ यू डू इट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सम. पहले ये करने के बाद तुम पाइथा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट मी शो यू वन मोर टाइम हाउ टू डू पाइथागोरस. पाइथागोरस थियरम इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर. फिक्स फॉर्मूला. साइड 1 5, साइड 2 का पता नहीं, एंड हाइपो 30. तो जो जहां है वहीं रखो. 25 प्लस साइड स्क्वायर इज 169. तो 25 सामने माइनस होने चला जाएगा, देयरफॉर साइड स्क्वायर 144, and if side square is 144, side is 12. तो साइड मिल गई 12, एरिया हो गया 30, और ये हो गई 12, पेरीमीटर मिल गया 30. सो
3 पार्ट्स, एरिया, पेरीमीटर, बट उसके पहले पाइथा शायद करना पड़ेगा. Triangle ABC 90 degree. Then read the question. Triangle ABC angle B 90. तो A ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. AB6 एरिया 24. Find perimeter. Obvious है, area is given, therefore I'll apply the formula of area half into side 1 into side 2 is 24. हाफ का जो 2 डिवीजन में वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड साइड 1 इज 6. या तो मत भेजो, हाफ 6 साइड 2 इज 24. 2 and 6 कट, so 3 into side 2 is 24. 3 मल्टीप्लाई की जगह सामने डिवाइड होगा, साइड 2 is 8. तो एरिया में से मुझे BC मिल गया 8. नाउ पेरीमीटर के लिए साइड 1 प्लस साइड 2 6 प्लस 8 तो तैयार है, लेकिन हाइपो मिसिंग है. एंड टू फाइंड हाइपो we will have to do Pythagoras theorem. Side 1 square plus side 2 square is hyposquare. 6 square plus 8 square is hyposquare. 36 plus 64 is hyposquare. 100 is hyposquare. तो अगर hyposquare 100 है तो hypo 10 है. अब फाइनली तीनों साइड मिल गई. पेरीमीटर ढूंढने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. फाइनल आंसर इज 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर. एंड लास्ट एंड द फोर्थ सम, राइट एंगल ट्राइंगल 90 degree. Perimeter of triangle is 40 centimeter. Perimeter is 40. Length of hypo is 17. तो hypo की जगह 17. Area of triangle is 60. Area is equal to 60. Find the remaining two sides of the triangle. S1, S2. See, writing this is very important. तुम्हारा फिगर में करेक्ट नंबर, जो नहीं पता उसकी जगह x या S1 S2, जो पता है वो सामने लिखा है पेरीमीटर 40 एंड एरिया 60. क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा. क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू हैव टू राइट डाउन द इंफॉर्मेशन. इन्फो लिखी तो फॉर्मूला लगाओ. पेरीमीटर साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस हाइपो इज 40 और हाइपो दिया हुआ है. साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस 17 इज 40. 17 सामने माइनस हो जाएगा 23. तो साइड 1 और 2 का टोटल मिला है अब तक. एरिया ट्राई कर. एरिया इज हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इज 60. 2 सामने मल्टीप्लाई कर दो. साइड 1 इंटू साइड 2 इज 120. सो दो नंबर का टोटल 23 है, ये रहा, और वही दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 120 है. हाउ टू सॉल्व दिस? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम है, तो ध्यान से देखना.
मिडल टर्म स्प्लिटिंग की तरह करो. 120 के दो पार्ट करो. 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 5 इंटू 24, 6 इंटू 20, 8 इंटू 15. तो जो भी मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है उसके दो दो फैक्टर्स क्रिएट करो और करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक एक ऐसा मैजिक जोड़ी आएगा जिसका टोटल 23 होता है. So 8 plus 15 is 23. 8 into 15 is 120. Therefore, side 1 is 8 and side 2 is 15. Sum over. This is very much like middle term splitting, which you have learnt in factorization. So this is where I stop. You have done A, B and C, square, rectangle and right angle triangle. होमवर्क डेडिकेटेडली करना, वरना ये चैप्टर में एक भी मार्क लाना मुश्किल होने वाला है. थैंक यू सो मच. सी यू लेटर. बाय.